Hello students, welcome to the industrial management class. In the last class we have discussed the sole proprietorship and also the business organizations and their advantages and disadvantages. Now the next is the joint stock companies. See, joint stock companies actually, how it is better than those. Usually there is a heavy burden risk in sole proprietorship and partnership organization that time. So, here the large number of members can be joined over here. Heavy burden of risk and limited financial resources involved in both proprietorship and partnership organization has led to the formation of joint companies, joint stock companies, and there is a limited liabilities. In such organization, the capital is contributed by large number of people. It is voluntary association of individual for making profit having capital divided into transferable shares of different values. The capital can be raised by selling shares of the different values. अगर एग्जिस्टिंग कंपनी आप लोग को प्रॉफिट दिखा रहे तो जो शेयर्स रहता है उसका वैल्यू बढ़ा के डिफरेंट वैल्यूज करके उसको आप लोग सेल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, सो यू कैन गेन मोर प्रॉफिट. द कैपिटल, द पर्सन हु परचेजिंग द शेयर्स कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर्स. वो शेयर जो भी लेता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं. देन द मैनेजिंग बॉडी रहता है इधर. मैनेजिंग बॉडी इज नोन एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इज इलेक्टेड बाय द shareholders. The board of directors are responsible for policy making, important technical and financial decision and efficient working of organization. वो भी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से वर्क करने के लिए वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है वो दोज आर द रिस्पॉन्सिबल. दे कैन मेक अ डिफरेंट पॉलिसीज एंड दे कैन टेक अ technical and financial decisions. Shareholders, so he cannot do anything, only he is responsible is to invest. He is not taking any decision, he is not involving any of the activities in the company here. Then in this there are two types of joint stock companies are two. One is a private limited and one more is a public limited. प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड का डिफरेंस क्या होता है इधर. प्राइवेट में सो मैक्सिमम 50 मेंबर्स है, लेकिन पब्लिक में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अपर लिमिट इट कैन बी एनीथिंग. बट प्राइवेट में कैसा होता है, ये दो आदमी मिला के प्राइवेट बना सकते हैं. देन मिनिमम 2 इट इज acceptable, but in public so minimum it should be 7 and maximum there is a no limit. But in a private minimum 2, then maximum is a 50. वो 50 लोग भी कैसा रहना चाहिए, so that too, so within the relations or your close friends, that such type of people only can involve in such type of private limited companies. So first the private limited company, this type of company can be formed by 2 or more persons. The maximum number of membership is limited to 50. In this transfer, the shares is limited to members only and general public cannot be invited to subscribe the shares. What I told, because only the relatives and friends can be involved, but not the general public here. Normally, members are friends and relatives. A private limited company need not make the prospectus, accounts and other particulars open to the public. ये prospectus बना के advertise करके public को बुलाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये limited रहता है, close relatives रहता है, friends रहता है. हाँ, public को account दिखाना ज़रूरी नहीं है और दूसरा particulars public को दिखाना नहीं ज़रूरी रहता है. So that the members only are entitled to receive the copy of the balance sheet and auditor report. जो auditor balance sheet, every year there is a balance sheet of the company, then there is a auditor report. So it is not necessary to show it to anybody. So within that 50 members, so you can check it out.
And one more advantage, the government also does not interfere in the working of a company here. गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसका इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता नहीं है इधर. The next, the public limited company. It is one whose membership is open to general public as its name indicates. The minimum number required to form such company is a 7, but there is a no upper limit. As already I told, minimum 7 and maximum there is a no limit for that. Such companies can advertise to offer its shares to the general public through a prospectus. Prospectus बना के पब्लिक में एडवर्टाइज कर सकते हैं आप लोग, अवेयरनेस ला के शेयर परचेज करने के लिए इनिशिएट कर सकते. दीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर subjected greater control and the shareholders and the members of a public. Shares are transferable in a part or by an elected body. Shares transfer कर सकते, anybody can purchase it, anybody can sell it. And जब इलेक्टेड बॉडी रहता है सो वो लोग भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यूजुअली किसका शेयर ज़्यादा रहता है, सो दोज पीपल, सो विद इन दैट ओनली दे विल फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हियर. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बॉडी इज लिमिटेड टू 7 ओनली. नेक्स्ट टर्म, so there is a liquidation. This term it is very important, you might have heard. वो कंपनी लिक्विडिटी हो गया, लिक्विडेशन हो गया करके सुना हुआ रहता है. So what does it mean actually? It becomes difficult to run the company. एक एक बार कंपनी को रन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. कब? If liability becomes much more than asset. लायबिलिटी आप लोगों का जो भी रन करने के लिए खर्चा रहता है असेट से ज़्यादा हो गए तो तभी क्या होता है, व्हेन क्रेडिटर्स प्रेस फॉर पेमेंट ऑफ अ लोन. आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका वजह से एक एक बार लोन लिया रहता है, वो क्रेडिटर्स क्या रहता है आपको ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं पेमेंट के लिए. सो दैट टाइम, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन द कंपनी. एट दिस टाइम द कंपनी हैज़ टू बी डिजॉल्व और वाइंड अप. वो डिसीजन लेता है डिजॉल्व करेंगे नहीं तो वाइंड अप करेंगे. दिस इज नोन एज अ लिक्विडेशन. लिक्विडेशन सिंपल है, लायबिलिटी इफ इट इज मोर देन द असेट्स, मोर देन द असेट्स, एंड व्हेन द क्रेडिटर्स दे विल फोर्स टू पे द पेमेंट. ओके, सच टाइम वो डिसीजन ऐसा हो सकता है लिक्विड कंपनी को डिजॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो वाइंड अप करने पड़ेगा. So that process it is called as a liquidation. Liquidation may be compulsory or voluntary or under the supervision of a court. एक एक बार कंपल्सरी हो सकता है, एक बार वॉलेंटरली मैं डिजॉल्व करता हूँ करके डिसीजन ले सकता है, नहीं तो एक एक बार कोर्ट से भी डिसीजन आ सकता है आप लोग वाइंड अप करो नहीं तो डिजॉल्व करो. इफ द रिसोर्सेज डू नॉट परमिट द पेमेंट, रिसोर्स जो भी है डू नॉट परमिट द पेमेंट, आपके पास इतना पैसा नहीं रहता है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, तभी क्या डिसीजन करना पड़ेगा, देन असेट्स ऑफ द कंपनी हैव टू बी सोल्ड एंड देन द अमाउंट इज पेड टू द क्रेडिटर्स इन प्रोपोर्शन. सो अलग अलग बैंक से लोन लिया रहता है, असेट सोल्ड सेल करने के बाद वो जो भी अमाउंट आता है वो क्रेडिटर्स को प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सपोज थोड़ा सा अमाउंट बच गए तो उसमें से, सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स हियर. दिस इज व्हाट द लिक्विडेशन. सो नेक्स्ट वन मोर टर्म इज देयर, एमलगेशन. एमलगेमेशन इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ अ टू डिफरेंट बिजनेसेस. इसको ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमलगेमेशन बोलते हैं उधर. ये ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू बिजनेस से क्या पैदा हो सकता है इधर, दिस मे रिजल्ट्स इन मोर एफिशिएंट ऑपरेशन ड्यू टू लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा. ये दो कंपनी ज्वाइन करने के बाद सो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी लार्ज स्केल में हो सकता है और मार्केटिंग भी अच्छा हो सकता है इधर. इसका वजह से ये प्रॉफिट कर सकते हैं आप लोग. इन अ प्रपोज्ड अमलगेशन
the existing assets and liabilities of both the parties are set out in a balance sheet or statement of affairs at the date of amalgamation. एग्जिस्टिंग असेट्स रहता है दोनों पार्टीज का, उसका लायबिलिटीज रहता है, उसको एक आप लोग बैलेंस शीट करना पड़ेगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग कंडीशन मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द प्रपोज पार्टनर. जो प्रपोज पार्टनर रहता है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और ही मे नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स व्हाट आर द कंडीशंस आर देयर. So this is what the amalgamation. So next let us discuss the joint stock companies advantages. Limited liabilities makes the shareholders to bear no risk and therefore more and more persons are encouraged to invest the capital to run the modern industries. इधर शेयर होल्डर अगर आप लोगों का आपस में मैं 10,000 डाल सकता हूँ, आप 20,000 डाल सकते हैं, दूसरा एक 5,000 डाल सकता है. सो लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, इसका वजह से रिस्क नहीं रहता है इधर. सो दैट्स वाई द मोर एंड मोर पर्सन्स आर एनकरेज टू इन्वेस्ट. बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर द रिस्क ऑफ लॉस इज डिवाइडेड. Therefore, even an average person can contribute capital without much hesitation. So पहले ही बता चुका मैं, anybody can इन्वेस्ट ईयर. इन्वेस्टमेंट कम रहता है, इसका वजह से इन केस बैड लक लॉस हो गए तो भी द रिस्क ऑफ लॉस इज वेरी लेस ईयर. सो इसका वजह से इवन नॉर्मल पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल. इन दिस द वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, हेंस बेटर वर्क कैन बी डन. ग्रुप में बहुत सारा पर्सन्स रहता है, सो ठीक से एफिशिएंट काम करने के लिए वो वर्क को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन बेयर द हाई सैलरीज ऑफ अ गुड मैनेजिंग एजेंट्स, दस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बेटर. अगर आपको एक मैनेजर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग पोस्ट का अलग अलग पोजीशंस का पर्सन्स को लेना पड़ेगा. विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन द ऑटोमेटिकली द सैलरीज आर डिफरेंट. Okay, so you want to have a good efficient worker, so you have to pay more. So in this joint stock company, so you can pay the better salaries over here. So automatically the administration will be a better. Joint stock companies are not affected by the death or retirement of a shareholder. एक मेरा 15,000 डाला रहता, अगर मेरा डेथ हो गए तो ओवरऑल कंपनी को इफेक्ट होता नहीं है इधर. इट हैज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ एक्सपांशन. एक्सपांड करने के लिए भी स्कोप रहता है, क्योंकि यू हैव अ गुड कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक ओवर हियर. सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? लेस कंट्रोल एंड लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज. इतना बड़ा कंपनी रहता है, थोड़ा थोड़ा वेस्टेज वगैरह हो गए तो किसी को पता नहीं चलता है. So this is the one main disadvantage. Directors and other members can sell or purchase the shares according to their will and a wish. ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एक बार इन्वेस्ट किए तो so you cannot come out from that company. ऐसा नहीं है. आप लोग कभी भी एक डायरेक्टर और शेयर होल्डर एनी टाइम ही कैन सेल और परचेज अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड विल. द इन्वेस्टर मे बी फ्रॉम any part of the country. This is also one disadvantage only. It requires large number of legal formalities to be observed. मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है ना, सो वो ज़्यादा रहता है. इज टू बी ऑब्जर्व प्रॉपरली. सिक्रेसी कैनॉट बी मेंटेन्ड. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. जो बिजनेस सीक्रेट रहता है, सो पब्लिक को आप लोग पूरा बैलेंस शीट वगैरह देना पड़ता है, सो इट कैनॉट बी maintained properly over here.